Thank you, Heavenly Father, for this opportunity, this beautiful day that you have given it to us, Lord. This opportunity, this privilege we have in the mighty name of Lord Jesus Christ, so we can approach your throne of grace. We can come before your throne of grace with a thanksgiving and praise. All the thanksgiving and honor and praises you, Lord Jesus Christ. There's no other God before you. There's no one like you. Love us so much, Lord. Thank you, Father, for this. Your servant is here, Father. Thank you for this holy sanctuary ministry, this platform that you have provided, so we can gather. The church can gather and can worship and glorify your name, Lord. Father, come and be present. Pour your Spirit on to Spirit. Let your Holy Spirit pour down upon to us, Lord, and pour upon to us, Lord, so we can all worship you with the truth and the Spirit, Lord. We are asking, Father, come and take a charge and be present, our Lord. Open our spiritual eyes and our minds and soul. And Father, let this meeting go smooth and effective. And Father, there should be no interruptions, Lord. Once again, Father, I pray for blessing for everybody, people who will be hearing and people who are joining us. We pray for your blessing, abundance, and goodness be upon everybody's, Lord. Continue to stay with them, Lord. We rebuke, Father, this let the weather be bearable for all onto the all face of the earth, Lord. Let the face of the earth, let the earth be warm and cool and keep your heavenly glory down onto the earth, Lord. Blessing be upon all mankind, especially believer and non-believers, Father, that you continue to bring, you be with them, Lord. Have mercy upon all mankind and keep everybody safe and sound from this deadly pestilence and plagues and the sickness and diseases and the cough and everything in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. We will worship the Lord. In the darkness we were waiting without hope or without light, till from heaven you came running, there was mercy in your eye. To fulfill the law and prophet, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake, you, Jesus, died. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to the King of Kings. Thank you, Jesus. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Son. You're the God Almighty, our Heavenly Father. All the honors, praise, glories to you, Lord Jesus Christ. There's no other God before you who love us so much, Lord.
Father, it's a Psalm 20, Psalm 100 say, shout for joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness, come before him with the joyful songs, know that the Lord is good, it is who made us, and we are his people, the sheep of his pastures. Enter his gates with the thanksgiving and his courts with the praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endure forever. His faithfulness continues through all generation. Lord, our Heavenly Father, who is so faithful to us, we worship and honor his name, Lord. We continue the worship, we will sing a song. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrow and trade with the joy. From the ashes a new life were born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. Father, arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't he wonderful? Oh, what a Savior! Isn't he wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before him, for he is the Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, Father, arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this wonderful moment, this privilege that we have in the mighty name of Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you, Father. Come take a charge. Fill us with your spirit, O Lord. Holy Spirit, come. We'll sing, we will sing, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. The promises of the God with us all the time. The God said, I never leave you, never forsake you, that I am with you till the end of your life, end of the world, end of the earth, or end of the life.
Isaiah 43, chapter 43, verse 2 say, when you pass through the waters, I will be with you. The promise of the Lord. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Thank you, Lord. Thank you for your promises, Lord. Our living Father who is with us all the time. He's holding us onto the right hand. His promises that I will never leave you, never leave you, never forsake you. His grace is abundance. We will worship his, we will give him a thanks and praise for his amazing grace. What a grace he has for us, Lord. His love is so great. We are so sinner, but yet he loves us so much. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear. In grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour first I believe. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior, have ransomed me. And like a flood, his mercy rain, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior, have ransomed me. And like a flood, his mercy rain, unending love, amazing grace, amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your abundant grace. Thank you for your sufficient grace, which is unending love, unconditional love you have towards us, Lord. Father, that we are saved in the mighty name of Lord Jesus Christ. You have called us in. All the honors and glories and praise to you, Lord our God, the King of heaven, King of earth, King of glory, King of angels, King of heaven and earth, and Alpha and Omega, the mighty one, the Savior one.
All the honors, the praise and glories to you, Lord Jesus Christ, that you love us so much, Lord, that we have a place into your heart. Your heart is always towards your children's, Lord, Father, that you always want us to hear your children's voice. You always want us to come to you. You are our rock of salvations and our fortress and our Heavenly Father. Father, we honor and glorify your name, Lord. As 2 Corinthians say, chapter 1, 3-4 say, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in the trouble with the comfort we ourselves receive from God. And Matthew 11:28 say, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. This is a confidence in the Lord Jesus Christ. Lord wants us to come to him because he's our confidence, giving us a confidence to come to him. Now, honors and praise and glorify his, because he knows we cannot live without him. There's no way we can live without him. If we turn away from him, that we are dead. But when we are with him, we are alive. So Father wants us to be lived. Father wants us to be alive. Father wants us to live happily. And our happiness and our life is with the Lord Jesus Christ. Come to him. So today are many who have not received the Lord Jesus Christ as a Savior. Jesus is calling. He's asking you to come and ask him as your Savior. Then you will be saved, have abundant life. Today, many are away from the Lord, but many are struggling. Many are struggling in the spirit, in their soul, because they are separate from the Lord. You need to come and connect with the Lord Jesus Christ. Connect with your Father. Connect with your Creator. Connect with the merciful, kind, and loving and gracious Father, and the Father who is waiting at the door for the children to come home. So it's an invitation for those people who have not come to the Father. Please come to the Father if you want to live. God bless you all. चले आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौका के लिए कि उसने फिर से बुलाया। हम खुदावंद के अल्टर पे इकट्ठे होते हैं कि खुदावंद बाप के वो अपने बाजू फैलाए खड़ा है ताकि हम उसकी हुजूरी में आए और उसकी मदद सराई कर सके और हम सब मिलकर उसके हुजूर अपनी शुक्रगुजारी के और अपनी वर्शिप और अपनी उसकी प्रेज के हम शुक्राने उसके सामने रख सकें। तो मैं रूथ से कहूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर करें, फिर उसके साथ वर्शिप शुरू करें। जी बिल्कुल। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को प्रभु की तरफ से हम सबको परमेश्वर ने आशीष और बरकत दी है। प्रभु ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। हम बड़े खुशनसीब लोग हैं। हम परमेश्वर के बच्चे जो खुदावंद ने अपने बच्चे होने के लिए हमें चुना है। हम परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं। वचन में ऐसे लिखा है कि जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वे उसकी संतान कहलाते हैं। सचमुच खुदावंद की मर्जी पर चलने वाले लोग खुदावंद की संतान हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है हम उसकी मर्जी पर चलने वाले हो सके। और खुदा बाप ने जो हमें आज का ये समय दिया, इस समय में परमेश्वर को हम आदर और महिमा देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर आगे आदर के योग्य है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परम परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते। खुदावंद आप आदर के योग्य, हमारे खुदावंद खुदा हैं। परमेश्वर यीशु मसीह सचमुच खुदाया, तूने हमारे साथ असीम प्रेम किया है। खुदा आपने अपने आप को हमारे लिए दिया। प्रभु जी हम अपने दिलों से परमेश्वर तेरे नाम को आदर और महिमा देने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हें सच्चे आराधक पसंद है। इसलिए प्रभु हम सच्चे आराधक बने। हालेलुया। हर मर्जी को तेरी पूरा करने वाले हो जाए। हम विशेषकर आज की इबादत के लिए दुआ करते हैं, जितने तेरे बेटे बेटियां इस परमेश्वर जूम मीटिंग में इकट्ठा हो। खुदावंद हालेलुया बड़ी आशीष और बरकत है। खुदा हालेलुया या कलीसिया यीशु के नाम में परमेश्वर और बढ़ती जाए। सचमुच खुदा है परमेश्वर, जो खुदा तेरी परमेश्वर आराधना को दिल से करते हैं प्रभु, वो सचमुच घटी में नहीं रहते, क्योंकि वचन में लिखा है
कि शेर के बच्चों को कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के तालिबों को कभी कोई कमी ना होगी। मेरे खुदा बाप, आपने हमें अपनी आत्मा से भरा है, अपने परमेश्वर खुदा यीशु मसीह गुणों से भरा है मेरे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के फलों के साथ भरा है परमेश्वर। सचमुच खुदाया, हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के फलों को चाहने वाले हो जाए, उसे मांगने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हमारी आत्मिक शांति तुझ में है मेरे खुदावन खुदाया। मेरे परमेश्वर, हमारे दिल खुदावंद यीशु मसीह तुझसे जुड़े रहे। कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से परमेश्वर आपके प्रिय दिल को ठेस पहुंचे। हम कोई ऐसा काम ना करें मेरे प्रभु। हालेलुया। हम वही काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं मेरे खुदा बाप। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारा आज का गाना परमेश्वर, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ना और सुनना खुदावंद यीशु तेरे स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए। हमें अपने परमेश्वर राज्य के लिए तैयार कर। सचमुच खुदाया, एक दिन परमेश्वर तेरे आत्मा ने मुझे गाइड किया परमेश्वर। एक दिन मैं प्रार्थना करी और मेरे मन में परमेश्वर तेरी आवाज उठी कि हम एंड के दिनों के लिए प्रार्थना करें। क्यों हमें बार Yes. बार वचन कहता है लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। सचमुच खुदाया, Yes. बार Yes. बार आपका वचन हमें यही सिखाता है, लगातार प्रार्थना करते रहो। सचमुच खुदाया, प्रार्थना में हमारी मजबूती है, तेरे नाम से जुड़ना हमारी मजबूती है, तेरे नाम से जुड़ना परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों को बदलने का परमेश्वर तू ही एक कारण है जो हमें परमेश्वर Yes. खुदा परमेश्वर से लेकर पांव तक बदल देता है मेरे खुदावंद। हालेलुया। हम दुआ करते हैं Yes. प्रभु जी, जो रूहें परमेश्वर तेरे वचन को नहीं जानती है, पाप के रास्ते में चल रही है, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, सब बचने वाले हो जाए, सब तेरे राह को परमेश्वर देखे। हालेलुया। अपने परमेश्वर दिलों को तेरे लिए खोल दे, क्योंकि समय थोड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। इस समय में अपने Yes. परमेश्वर के लिए हमने परमेश्वर अपने आप को तेरे लिए देना है खुदावंद। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, Yes. खुदावंद खुदा, तेरे नूर परमेश्वर, तेरा जलाल खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नजर आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तुझे चाहने वाले हो जाए हम परमेश्वर, Yes, दुनिया Lord. को खुश Yes. करने वाले नहीं बल्कि अपने परमेश्वर को खुश करने वाले हो जाए। हमारा खुदा हमें चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमारे दिलों में वफादारी बनी रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, सचमुच खुदा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपने हमें सबको जोड़ा है मेरे प्रभु जी, हमारी कलीसिया यीशु मसीह हालेलुया बहुत सी रूहों का बचने का परमेश्वर कारण बन जाए मेरे खुदावंद। हालेलुया। परमेश्वर, जो भी इस आराधना को सुने, मीटिंग को सुने, परमेश्वर वो आशीष बरकत को पाए मेरे खुदा, वो वचन की गहराई को समझे, वर्शिप को समझे, प्रार्थनाओं को समझे। हालेलुया। शब्दों को अपने दिल में उतारने वाले हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच खुदाया, तूने अपने लोगों को आशीष किया है वचनों के द्वारा। सचमुच खुदा, जब तेरे लोग बोलते हैं तो परमेश्वर दिल हिलते हैं। सचमुच खुदाया, रूहें हिलती हैं खुदावंद। हालेलुया। जीवन हिलते हैं प्रभु, जीवन बदलते हैं। तेरा वचन हमें बदलता है प्रभु, तेरा वचन हमें बदलता है मेरे प्रभु। हमारे दिलों में चाहत हो तेरे लिए और तेरे लोगों को बचाने के लिए, हमारी चाहत ऐसे बढ़ती जाए मेरे प्रभु। आपने अपनी कृपा की है, अपना अनुग्रह किया है, हम तेरे नाम को महिमा देता है प्रभु। आपने हमें चुना है खुदा, इससे परमेश्वर चुने जाने के कारण को परमेश्वर हम अपने दिलों में ले और अपनी परमेश्वर चुनाहट को समझे कि खुदावंद ने अपने लिए हमें चुना है। हम कितने खुश नसीब है, खुदावंद ने हमें अपने फजल के साथ भरा है, अपनी बुद्धि से भरा, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। सचमुच खुदा है, वो हमारा सहायक है परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हम सहायक की परमेश्वर हर वक्त खुदावंद जरूरत को समझे, हम परमेश्वर से समझे। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा हमारे साथ चल रहा है, हमें अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना, हर काम में परमेश्वर तुझसे शुरुआत हो हमारी, हमारे जीवन यीशु मसीह हालेलुया मरते दम तक वफादार रहे। प्रभु यीशु मसीह, आपने आज के दिन के लिए हमें चुना, हम आपकी महिमा करते। सचमुच खुदा, हमारे होठों से तेरी महिमा हो, हमारे दिल तेरे लिए खुले रहे और खुदा तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में हमेशा ले। हमारी दुआ को सुने कबूल करे मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम, आमीन। Amen. Amen. खुदावंद का शुक्र हो। Psalm 86:12 say, I will give thanks to you, O Lord, my God, with all my heart and will glorify your name forever. Thank you, Lord. And come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our makers, our heavenly Father. अभी हमारे साथ हम रूथ और रवि से कहेंगे कि वो वर्शिप करें खुदावन के हजूर। हमारे साथ पास्टर खान, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो आप प्लीज खुदावन के हजूर वर्शिप करें। ठीक है, सो आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक भजन गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना,
वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, वो तो उन्हें संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, वो तो उन्हें संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारन हमारी शरण रहे, सामना कौन कर पाएगा। यीशु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. आप worship को जारी रखें रूथ। सो आइए एक ज़बूर बोलेंगे सी। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे। मुंह में तो ना छुपावी, तंगी वेच दुकान लगाई। मुंह में तो ना छुपावी, तंगी वेच दुकान लगावी। दे उतर जरूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे। मैनू करन मलामत वैरी, जिद विच होए पागल जैरी। मैनू करन मलामत वैरी, जिद विच होए पागल जैरी। फटका देन जरूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे। तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के पैर डगाया। तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के पैर डगाया। होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे।
मेरी उम्र दे दिन ने साया मैं कावांगर कुमलाया मेरी उम्र दे दिन ने साया मैं कावांगर कुमलाया होया सुख के चूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ रब्बा पहुंचे हालेलुया Hallelujah, praise the Lord. Yes, उसी के हुजूर हमारी दुआएं जाती हैं, उसी के हुजूर हमारी दुआएं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कोई और जिंदा खुदावंद नहीं है जो हमारी दुआओं को सुन सके। वही एक बाप है जो हमारी फरियादों को, हमारी दुआओं को, हर चीज को सुनता है, हमारी आवाज को सुनता है और वो उस पे हमें जवाब देता है। आप वर्शिप को जारी रखें, ब्रूथ वर्शिप को जारी रखें। सो आइए एक और ज़बूर ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚੇ ਰੱਬਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚੇ ਆਈ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा यकीन जाना यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं जकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नूं जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नूं ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੁਆ ਸੁਣ ਰਹਿਮ ਵੀ ਫਰਮਾ मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा दुआ सुन रहम भी फरमा जकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओह पुकारां नूं जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नूं जदों तैनूं पुकारां मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा दुआ सुन रहम भी फरमा दुआ सुन रहम भी फरमा हालेलुया Amen. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. अभी हमारे साथ मुस्कान है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो इस मीटिंग के लिए दुआ करें, चौथी मीटिंग के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और हम सब के लिए शुक्र अदा करें और आज जो भी हम खुदावंद का कलाम सुनने के लिए उसके लिए भी शुक्र करें।
फिर उसके बाद हमारे साथ मारिया है। मैं मारिया से कहूंगी कि वो कोर्स गाएं, और कोर्स के बाद मारिया फिर खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगी। आज खुदा उनके कलाम की खिदमत हमारे भाई पास्टर इरफान शरफ है, वो करेंगे। तो मुस्कान, आप पहले दुआ कीजिए। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कदूस जलाली पिता खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते खुदा, आज के इस दिन के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकर हम तेरे सुंदर कदमों में आकर झुके और तेरे नाम को जलाल दे। यीशु मसीह के नाम से खुदा, जितने लोग तेरे हजूर सरनगुए हुए खुदा, सबको नाम बेनाम बरकत देना खुदा। जितने लोग ऑनलाइन नहीं हो सके खुदा, उनको भी अपने साथ चलने का गहरा फजल अता कर, ताकि खुदा हर तरह की रुकावट या नाम से जाती रहे खुदा, जल्द से जल्द ऑनलाइन हो। यीशु मसीह के नाम से खुदा, जितनी तेरे हजूर दुआएं की जाए खुदा, अपने हजूर बखूर की मदद कबूल फरमाना खुदा। जितनी वर्शिप की जाए खुदा, इस वर्शिप को अपने हजूर बखूर की मदद कबूल फरमाना खुदा। आज के कलाम के वसीला से खुदा जिंदगियां गराने तब्दील होते चले जाए खुदा। अपने खादम, अपने ममसू को आग की शलक की तरह इस्तेमाल करना खुदा। और जितने लोग ऑनलाइन हो चुके हैं खुदा, सब पर तेरी बरकत, तेरा फजल वाला हाथ मांगता है यीशु मसीह के नाम से खुदा। इस हॉली सेंचुरी मिनिस्ट्री को और बढ़ाता कर तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से खुदा, हम मुत्तफिक होकर तेरे हजूर तेरे नाम को जलाल दे, तेरी इबादत करे खुदा, तेरे हजूर वर्शिप करे, तेरे नाम को जलाल दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारे साथ मारिया या प्रोबल है, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो कलाम के लिए, मैं पहले इसको रिकॉर्डिंग को खत्म करूंगी, फिर ऑन करूंगी, फिर आप कोर्स गाइएगा, फिर दुआ कीजिएगा, फिर हम खुदा उनके कलमात की, खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ेंगे। चले मारिया, अब आप खुदा के कलाम के लिए कोर्स गाएं, और फिर उसके बाद कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया जी। यस। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गल्बा मुझे पे तो दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गल्बा मुझे पे तो दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर।
हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे भूखे और प्यासे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। हमने तेरी प्रस्तिश की है, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावन। हमेशा खुदावन हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुन सकें। तो खुदावन तेरे खादिम को, पास्टर इरफान साहिब को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। यीशु नासरी अपना हाथ बढ़ाना, तेरी कुदरत जोर से नाजिल हो खुदावन, तेरा कलाम नाजिल हो खुदावन। यीशु के नाम में खुदावन आज का तेरा कलाम खुदावन, तेरे मुंह की बातें हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला बने, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता खुदावन। कभी भी खुदावन बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि खुदावन शिफा बख्शता है, बहाल करता है, आजाद करता है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। अपना हाथ बढ़ाना खुदावन, अपने खादिम को आज खुदावन कसरत से इस्तेमाल करना, और सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। उसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम सब अपने माइक अनम्यूट करके खुदावन के कलाम को अपने दरमियान वेलकम करेंगे, उनके लिए तालियां बजाएंगे और खुदावन के बंदा को भी हम वेलकम करेंगे। उसी यीशु के तमाम खून खरीदों को मेरी तरफ से सलाम। कभी सलाम। आज मेरे लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा पैगाम खुदा के कलाम से मिला है, और मैं ईमानदारी ध्यानदारी के साथ आप लोगों के साथ उस कलाम की खिदमत करूंगा। आज मैं समझता हूं कि दौरे हाजिर में कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा इंसान इस धरती पर मौजूद नहीं होगा जिसको बेपनाह आजमाइशों, परेशानियों, चैलेंजेस का सामना होगा। आज खुदा के कलाम से हम जिन बातों को सीखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ना सिर्फ आपके रूहानी तरक्की का बाइस होगा, बल्कि आपके ईमान को और ज्यादा मजबूत करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के लिए हमारा जो मरकजी आयत है वो है यिर्मयाह का सहीफा, उसका 33 बाब और उसकी 3 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी तसल्ली, बरकत और नजात का बाइस हो। आमीन आमीन। बाइबल के मुफस्सिरीन, बाइबल मुकद्दस की किताबों के तफसीर बयान करने वाले, लिखने वाले जब इस हवाला को पढ़ते या इसका बयान करते या इसकी तफसीर लिखते हैं, तो अक्सर औकात वो इस हवाला को, यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 3री आयत को खुदावंद का मोबाइल नंबर भी बयान करते हैं, और खुदा के साथ राब्ते रखने का एक जरिया है।
जब हम जूम मीटिंग पर ऑनलाइन होते हैं, हमारे अक्सर बहन भाइयों जो वर्शिपिंग कर रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, अक्सर प्रीच कर रहे होते हैं, उनकी आवाज हम तक सही मानों में नहीं पहुंच पाती। अक्सर उनकी आवाज हमें सही सुनाई नहीं देती नेटवर्क की वजह से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास खुदा का ये नंबर है, खुदा के साथ आप बात कर सकते हैं। ना सिर्फ आप बात करते हैं और आपकी कॉल खुदा रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी कॉल को यस करता और आपको जवाब देगा। और बड़ी बड़ी बातें खुदा आपके साथ, भेद की बातें जो है, गहराई की बातें जो है, वो आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज ईमानदारों को जरूरत है कि वो दुआ गो हों, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें। आज मैं समझता हूं कि लोगों को पता भी है कि खुदा निजात दहिंदा है, उसकी रफाकत में कामल शादमानी है, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता खुदा के साथ कमजोर है। मैं तमाम सुनने वाले सामीन को आज बताना चाहता हूं, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपके लिए आज नया काम करने को है। हालेलुया। 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 आज की खुदा के कलाम से हम सीखेंगे कि दुआ क्या है और हमें दुआ क्यों करनी चाहिए। जब हम दुआ के बारे में सीखते हैं तो आपको बताता चलूं, दुआ खुदा तक इंसानी रूह की रसाई का काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। और दुआ 3 अल्फाजों से मिलकर, जब इसे पढ़ते हैं तो इसमें 3 अल्फाज है। 3 अल्फाजों को जब मिलाते हैं तो तब दुआ बनता है। दाल, ऐन और अलिफ। दाल का मतलब है दिल से, ऐन का मतलब है अकल से, और अलिफ ईमान से। दिल से, अकल से और ईमान से खुदा की हजूरी में झुक जाने का नाम दुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और याद रखिए, जब हम दुआ के बारे में सीखते हैं तो हमें ईमान के कामल बानी खुदावंद यीशु मसीह की शख्सी जिंदगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी कैसी थी। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों ने अपनी फेसबुक आईडीज बनाई हुई है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वो अक्सर इस बात को लिखते हैं, वी आर फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर फॉलोअर ऑफ आवर क्राइस्ट। बट जब उनकी जिंदगी का मुआवजा किया जाता है तो उनकी जिंदगी दुआया जिंदगी नहीं होती। आए खुदा के कलाम में से चंद अहम बातों को सीखते हैं। पहली बात ये कि क्या आपके पास दुआ का तरीका है, दुआ करने का आपके पास सिनेरियो है। सबसे बढ़कर ये कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो क्या आपकी दुआया जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी जैसी है। मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत देखें। खुदावंद यीशु मसीह किस तौर से दुआ करते थे। और लिखा है,
और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और 23वीं आयत में लिखा है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी का पैटर्न देखिए कि उसने शागिर्दों को मजबूर किया कि वो कश्ती में सवार होकर चले जाएं और लोगों को रुखसत किया करें, और इसलिए कि वो वक्त खुदावंद यीशु मसीह का दुआ करने का वक्त था। आप अपने वक्त की कदर नहीं करते, इसलिए वक्त और वक्त को बनाने वाला हमारा खुदा आपकी इस बात को पसंद नहीं करता। मैं अक्सर चर्चेस में देखता हूं, जब भी किसी बहन या भाई के हाँ कोई अजीज, कोई मेहमान दूर नजदीक से उनके यहाँ आ जाए, तो वो चर्च नहीं जाते। वो अगर उनका दुआया वक्त है तो उस वक्त में वो दुआ नहीं करेंगे और उनको टाइम देंगे। मैं ये नहीं मना करूंगा कि आप अपनी दुआ के वक्त में, आपका कोई मेहमान आता है तो उसको वक्त ना दें, आप उसको वक्त दें, लेकिन जो आपका दुआ का वक्त है आप उसे भी उस दुआ में शामिल कीजिए। अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उससे भी कहें कि आए खुदा की हैकल की तरफ चलें, क्योंकि खुदा की हैकल की तरफ जाने का वक्त हो गया, और बाकी आकर घर आकर फिर दोबारा आपसे अहवाल बांटेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. जब हम पतरस और यूहन्ना के बारे में देखते हैं, लिखा है कि वो दुआ के वक्त हैकल को जा रहे थे। मेरे अजीजों, आज अगर ईमानदारों की जिंदगी पर गौर करें, जो ईमानदार होने के दावेदार हैं, तो उनकी दुआया जिंदगी ना होने के बराबर है। ना तो उन्हें उनकी जिंदगी में दुआ की कोई अहमियत है और ना ही खुदा की। दरअसल आपकी दुआया जिंदगी ही खुदा के साथ आपके रिश्ते को बयान करती है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ किस कदर मजबूत है। और खुदावंद यीशु मसीह का खुदा बाप से रिश्ता इस कदर मजबूत था कि वो सारी दुनिया को एक तरफ करके तन्हा उसके हुजूर दुआ करता था। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. और इसी तरह अगर हम एक और हवाला को देखें, लूका 6 बाब और उसकी 12 आयत। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। मैं यंग जनरेशन को बताना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, आपकी सारी रात फोन कॉल्स में गुजर जाती है। आपकी सारी रातें मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने में गुजर जाती है। लेकिन मेरे असीसों, क्या ही अच्छा हो कि आपकी सारी रातें दुआ में गुजरना शुरू हो जाए। दुआ में आप खुदा के साथ बातें करना शुरू हो जाए और खुदा आपके साथ बातें करना शुरू हो जाए। दुआ हमारी रूहानी तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं पतरस रसूल ने जब पैगाम दिया और
3,000 लोगों ने रसूलों के साथ मिले उस कलाम के वसीला से, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो उन्होंने रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अमाल 2 बाब, रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 42 आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। याद रखिए, तालीम पाना, मसीही तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, और चौथा जो जबरदस्त उनका अमल था वो था दुआ करने में मशगूल रहना। अक्सर बहन भाई प्रेयर सर्विसेज में जाएंगे और वहां भी दुआ करने में मशगूल रहने की बजाय वो अपने घरों के अहवाल एक दूसरे से बांटना शुरू हो जाएंगे। दुआ आए जरा हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस दुआ के बारे में हमारी किस तौर से रहनुमाई करता है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। आज क्या आप इस आयत को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं? और मैं आपको बताता चलूं, पौल ने ये जो बात कही है कि बिला नागा दुआ करो, मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते कि हर रोज हमारे लिए एक नया चैलेंज तैयार होता है कि हम उसके साथ निपटे। मुझ में, आप में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने चैलेंजेस, अपनी मुश्किलातों के साथ लड़ सकें, लेकिन हमारे पास एक हथियार है और वो दुआ है, जो हमारी मुश्किलों में, हमारी परेशानियों में हमें मजबूत करता है, हमें वो ईमान में बढ़ा देता है, हमें रूह में बढ़ा देता है, ताकि हमारी दुआ जो है वो खुदा के हजूर पहुंचे और खुदा हमारी दुआ के वसीला से हमारी रूहानी तरक्की करे, हमारी मुश्किलों को दूर करे, हमारी परेशानियों को दूर करे। लिहाजा हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए। मेरे अजीजों, याद रखिए, जो लोग, मैं रूहानी बात आप लोगों से करने लगा, जरा गौर से सुनिएगा, जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं। हालेलुया। Yes. Hallelujah. जिनकी Yes. रातें दुआओं में गुजरती हैं उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं। Yes. ज़बूर नवीस बयान करता है कि वो अपने महबूब को नींद में नींद में ही देता है। पाक दे देता है। हालेलुया। Yes. Hallelujah. Hallelujah. क्यों दे देता है? क्योंकि उसे पता है कि ये जो मेरा महबूब है, ये जो मेरा मोहब्बत करने वाला बेटा या बेटी है, ये सारी रात दुआ में झुका रहा है और मुझसे पेवस्ता रहा है। हालेलुया। Yes. Hallelujah. और दुआ हमारे लिए खुदा के भेदों को हम पर खोल देती है। दुआ के जरिए हमें अपनी आने वाले सिमत का पता चलता है कि हमें किस तौर से किस तरफ जाना है। और फिलिपियों के खत उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, बहुत ही ये एनकरेजिंग है मेरे और आपके लिए। किसी बात की फिक्र ना करो,
कैसी खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाली खुदा के कलाम पाक की बातें हैं। किसी Yes. बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। Yes. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ करने की। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपने काम काज से वक्त निकालकर, फरागत निकालकर दुआ नहीं करनी, बल्कि दुआ करके फिर बाकी काम काज की तरफ तवज्जो करनी है। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ मैं देखता हूं कि हमारी बहनें, हमारे भाई, उनकी दुआया जिंदगी जितनी कमजोर है उतने वो रूहानी कमजोर हैं, उतने वो खुदा से ज्यादा दूर हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। अक्सर हमारी बहनें वो प्रेशर कुकर का बज़ जो है 10 to 15 मिनट्स पर लगाकर वो दुआ करती हैं। उनकी तवज्जो बजाय खुदा की तरफ होने के आंखें भी बंद, शायद सजदा रेज़ भी होती हो, लेकिन उनकी तवज्जो उस दुआया जो उनकी सूरत में दुआया वक्त है, उस वक्त में भी प्रेशर कुकर की तरफ होती है, खुदा की तरफ नहीं होती। आपको खुदा के हजूर दुआ करने में वक्त गुजारना है, और जब दुआ का वक्त आप अच्छे तरीके से खुदा की हजूरी में गुजार लें, फिर आपने बाकी कामकाज करने हैं। हालेलुया। और आपके एल्डर्स, डीकन्स, पास्टर्स, अगर आप चर्च मेंबर हैं, ईमानदार हैं, अगर आप दुआगो हैं, तो आपके चर्च एल्डर्स, डीकन्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, मुकद्दसीन जो है, सेंट्स जो हैं, उनको भी आपकी दुआ की जरूरत है, उनके लिए भी आपको दुआ करनी है। अफिसियों 6 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से, याद रखिए, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। यहाँ हमारी दुआएं कम, हमारी डिमांड्स खुदा के आगे ज्यादा होती हैं। हम दुआ का सिनेरियो जो हमने बनाया हुआ है वो ये है कि जब दुआ शुरू करते हैं, खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी, तू भला, तू मुबारक, तू रहीम खुदा, और बाद में अपनी डिमांड्स, और उन डिमांड्स के बाद यीशु के नाम में आमीन। हमारी खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप दुआ, अपने हॉली सेंट्स, हॉली जो आपके जो एवेंजलिस्ट हैं, आपके जो पासवान हैं, आपके जो डीकन्स हैं, उनके लिए आप दुआ कीजिए। आप खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी में उस वक्त भरते चले जाएंगे जब आप दुआ करेंगे। और याद रखिए, दुआ के वसीला से खुदा का इरादा भी तब्दील हो सकता है। हालेलुया। दुआ ही ईमानदार के पास वाहिद एलिमेंट है जिसके तवस्सुत से खुदा का इरादा तब्दील हो सकता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं अहदे अतीक में भी हमें बहुत सारी ऐसी दुआएं मिलती हैं जिनको अगर इस दौरे हाजिर का
ईमानदार या गैर ईमानदार ही अगर सोचे तो उसकी अकल दंग रह जाती है। खुदा का बंदा दुआ करता है, खुदा का आसमान बंद हो जाता है। खुदा का बंदा दुआ करता है और खुदा का आसमान खुल जाता है। हालेलुया। Hallelujah. और दूसरा सलातीन और उसके 20 बाब में लिखा है हिजकिय्याह बादशाह की बीमारी के बारे में। उसके पहली आयत में, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदा यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। जब हिजकिय्याह को यशाया बिन आमोस बताता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा, बचने का नहीं। खुदा ने मुझे ये कहा कि तुझे ये पैगाम दूं। और हिजकिय्याह का रिएक्शन देखिए। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। हालेलुया। और क्या हुआ जब उसने दुआ की, वो जब रोया, उसने जब खुदा के हुजूर गिरे आजारी की, उसने जब खुदा के हुजूर झुककर दुआ की, इस बारे में अपनी उस हालत में जब खुदा ने अपने नबी को भेजकर कहा कि तू जल्द रुखसत हो जाएगा, मर जाएगा, तू बचने का नहीं। उस हालत में भी जो ईमानदार है हिजकिय्याह बादशाह, उसने दुआ का हथियार इस्तेमाल किया। उसने दुआ करना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि ये दुआ ही है जो मेरे लबों से निकलेगी और खुदा रहीम, खुदा रहम करेगा। हालेलुया। और क्या Hallelujah. होता है कि जब वो दुआ करता है तो इसके 5वीं आयत में लिखा है, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह। वो खुदावंद जिस यशाया को कहता है, लिखा है इसकी 4थी वर्ष को अगर पढ़े, और ऐसा हो गया यशाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तेरे दिन तू खुदावंद के हुजूर में तीसरे दिन तू खुदावंद के हुजूर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथों से बचा लूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, Hallelujah. आपकी दुआ खुदा के इरादा को तब्दील कर सकती है। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप टेम्पटेशंस में है, ट्रायल्स में है, आप किसी ऐसी आजमाइश में है जिसमें आप बिल्कुल एक पैरालाइज पेशेंट जैसी आपकी सिचुएशन हो चुकी है, आप दुआ में खड़े होना शुरू कर दीजिए। आप दुआ में खड़े होना शुरू करेंगे तो खुदा अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा। आपके जिंदगी के चारों अतराफ जो खतरात मंडला रहे हैं, आपके दुआ करने के वसीला से वो जाते रहेंगे, और आपके तमाम मसाइल आपकी दुआ के वसीला से आपके लिए वसाइल में तब्दील हो जाएंगे। आपकी बीमारियां आपके लिए मौजज़ों में तब्दील हो जाएंगी जब आप अपने जिंदा यहोवा पाक खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। हालेलुया। Yes. Hallelujah. और खुदा की बरकतें हासिल करने का भी तरीका दुआ में है। खरूज की किताब 23 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत के हिस्सा में ही दुआ है। और जब आप अपने खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो फिर क्या खुदा करता है, तब वो आपके रोटी और पानी पर बरकत देगा। ना तो आपके घर में कोई इसकात होगा और ना ही कोई बांझ रहेगा। हालेलुया। और पेट का जो फल है वो आपका कच्चा ना छड़ेगा।
मेरे अजीजों, आप इस बात को प्रैक्टिकली एडमायर करना शुरू करें, तस्लीम करना शुरू करें। जब आप, और याद रखिए, हम जब इस बात को प्रीच करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई साहब रोटी तो असी भी खा रहे हैं, रोटी तो हम भी खा रहे हैं। और याद रखिए, रोटी खाना ही बात नहीं होता, बल्कि बरकत वाली रोटी खाना असल बात होता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और ये बरकतें दुआ की सूरत में हमारी जिंदगी में आती है। हालेलुया। हालेलुया। और दुआ के वसीला से खुदावन अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाता है। दुआ के वसीला से हम भी नूरानी हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खरूज 34 बाब और उसकी 29 आयत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें हमारी रहनुमाई किस ओर से करता है। खुदा का बंदा मूसा जब पहाड़ पर गया, खुदा के हुजूर दुआ की, तो खुदावन ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा जबरदस्त काम किया। खरूज 34 बाब और उसकी 29 आयत। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहे अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फॉरएवर ग्लो। आपके अंदर खुदा का नूर, आप जब खुदा के हुजूर बातें करते हैं, खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, तो आपकी जिंदगी में खुदावंद नूर को छलकता है। और उस नूरों वाले खुदा से बातें करने की वजह से खुदा आपके अंदर अपने नूर की चमक को जाहिर करता है, और आपकी जिंदगी दूसरों से डिफरेंट जिंदगी हो जाती है। दुरे हाजिर में सबसे बड़ा चैलेंज जो मौजूदा चर्चेस और कलीसिया को है, उनकी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कलीसियाएं, माजरत के साथ, दुआगो कलीसियाएं नहीं है। अगर इब्तदाई कलीसिया पर नजर करें, वो दुआ करने वाली कलीसिया थी, और मौजूदा कलीसिया दुआ करवाने वाली कलीसिया है। वो इब्तदाई कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की फॉलोअर थी। उनकी रातें, उनके ज्यादा वक्त खुदा की हुजूर दुआ करने में गुजर जाता था, और खुदावंद उनकी जिंदगी में मौजज़ात करता था। आज जरूरत इस वक्त की है मेरे अजीजों, कि हमें इनकरेज करना है, एक दूसरे को बताना है कि हम अपने दुआया मजहबों को मजबूत करें, अपनी दुआया जिंदगी को और ज्यादा बढ़ाएं, अपनी खुदा के साथ मुलाकात जो हमें खुदावंद ने मौका दिया, अपने खुदा के हुजूर झुककर हम दुआ करें, उस दुआया वक्त को हम एक्सटेंड करें। याद रखिए, जब आपका वक्त दुआ में गुजरना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी के तमाम चैलेंजेस दूर होते चले जाएंगे। और जिस तरह से, जिस तौर से आप खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी में दुआया तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करना शुरू हो जाएगा। आज हमें खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, और वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दुआ की सूरत में ही मजबूत हो सकता। मैं आप सब लोगों की हौसला अफजाई करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है।
बहुत सारे लोग दावेदार हैं कि वो बड़े दुआगो हैं, उनकी दुआ अपने जिंदगी अपनी जरूरियात से ही शुरू और जरूरियात पर ही खत्म है, लेकिन अपने बहन भाई, अपने इर्द गिर्द के अफराद, गुनाहों में घिरे हुए लोगों के लिए वो दुआ नहीं करते। और ज़बूर नवीस ज़बूर 66 में बयान करता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। और अगर आपकी दुआ खुदा की बारगाह तक, खुदा के आसमान तक, खुदा के तख्त तक नहीं जा रही, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बदी को अपने दिल में रखकर, गुनाह आलूदा जिंदगी में होकर उस पाक खुदा के आगे दुआ कर रहे हैं। आज मेरे भाई, मेरी बहन, हमें जरूरत है कि खुदा तक हमारी रसाई, हमारी रूह की रसाई सिर्फ दुआ कर सकती है। जरूरत है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह अपना ज्यादा वक्त दुआ में गुजारते थे, हम भी दुआ में गुजारे। हम रूहानी तौर पर तरक्की क्यों नहीं करते? क्योंकि हम दुआ को नहीं है। हम मुकद्दसों के लिए दुआ नहीं करते। दुआ के वसीला से खुदावन का इरादा तब्दील होता है और हम दुआ नहीं करते। दुआ के वसीला से खुदावन की बरकतें हमें मिलती हैं और हम दुआ नहीं करते। दुआ के वसीला से खुदावन अपने नूर को हमारी जिंदगियों में दाखिल करता है और हम दुआ नहीं करते। दुआ के वसीला से बेदारी आती है और हम दुआ नहीं करते। दुआ के वसीला से लोग खुदा को कबूल करते हैं और हम दुआ नहीं करते। आए आज से अपने सब कामों को एक तरफ रखें और अपने दुआया वक्त को खुदा के साथ बढ़ाएं। अपने दुआया मजहबों को मजबूत करें। अगर आपकी रातें दुआओं में गुजरना शुरू हो गई तो मैं ईमान के साथ ये दावा करता हूं कि आपके दिन मौजज़ात में गुजरना शुरू हो जाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको दुआ को बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू भाई, खुदा उनका शुक्र है इस बहुत अच्छे मैसेज के लिए कि हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ में मशगूल रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जागते रहो और दुआ करते रहो। तो भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है कि जब हम रूह में कमजोर होते हैं तो इसका मतलब है कि हम दुआ नहीं करते। तो हमें हमारे जिस्म में जब कोई कमजोरी होती है तो वो खुदावन की से दूरी होती है। तो खुदावन से अच्छा मैसेज जो हमने सुना उसके वसीला से हमें बहुत कुव्वत मिली कि हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। जैसे कि दुआ, जैसे भाई ने कहा कि दुआ करना और मांगना, तो मांगना ये है कि जब यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो मांगने का मतलब है कि दुआ करोगे। तो हम कैसे खुदावंद के साथ हमारी कम्युनिकेशन, हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ दुआ के जरिए बहाल होता है। तो जैसे खुदावंद ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगने का मतलब है कि जब दुआ करोगे मेरे नाम से तो तुम्हें मिलेगा। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं मुस्कान से कहूंगी कि वो इस अच्छे कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ करें और बरकत चाहें, भाई के लिए बरकत चाहें और हम सब के लिए बरकत, ये दुआ, ये आज का जो मैसेज है बरकत का बायस हो। तो आइए हम मुस्कान के साथ मिलकर खुदावंद के इस कलाम के लिए दुआ करेंगे जो हमने अभी भाई के मुंह से सुना। प्रेज हालेलुया। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुदूस जलाली पिता खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती खुदा, तूने फिर से ये मौका अता किया ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में आकर झुक सके और तेरे नाम को जलाल दे। यीशु के नाम से खुदा, इस सच्चे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदा, जो तेरी कलाम की बातों को सुने खुदा, उस पर सीखे, उस पर चलने वाले हो। यीशु के नाम से खुदा, अपने में चलने का बड़ा फजल अता कर। खुदा, अपने खादम, अपने ममसूल को इसी तरह और आके शोला की तरह इस्तेमाल कर खुदा, नबूवत इल्मियत का कलाम दे, मुकाशवात के बेद दे, ताकि खुदा तेरा खादम तेरे लोगों तक तेरे कलाम की बातों को पहुंचाए और जिंदगियां घराने या सुनाम से तब्दील होते चले जाए। खुदा, जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है खुदा,
तेरे कलाम के वसीला से सबने बरकत पाई है खुदा। जितने लोग इसको सुनने को है खुदा, उन लोगों पर भी तेरी बरकत मांग लेती है यीशु मसीह के नाम से खुदा। जितने लोग इसको यूट्यूब चैनल पे सुनते हैं खुदा, उन सब पर भी तेरी बरकत मांग लेती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Amen. Amen. Amen.